Good morning, everyone. In today's class, we will solve numerical based on electricity chapter. If you have any confusion, then you will raise your hand here, and I will allow to speak. And without requirement, then no need to speak. Just see first question. Question number one: an air conditioner. An air conditioner of 3.2 kilowatt power. Deliver 3.2 kilowatt rating. Rating power of an air conditioner is what? 3.2 kilowatt. And further, what is given? The given here, this air conditioner of following rating is connected to a domestic electric wiring or circuit having a current rating of 10 ampere. Current rating, that is I equal to what? 10 ampere. Here, the power is given here 3.2 kilowatt and current is also given, current rating 10 ampere. The voltage of power supply, the voltage of power supply V equal to what? 220 volt. 220 volts. Here, all the three things are given here. First, 3.2 kilowatt given, and the current rating 10 ampere given, and also voltage of main power supply, that is 20 volt given. Then you have to find out what? This is what will happen? What will happen when this air conditioner is switched on? Explain your answer. Here you have to explain about the answer. Are you saying that you have to give the region when the switch is on, then the air conditioner is in proper working or not in proper working after switching on condition. And to after this, we have to calculate what? Current value. We have to calculate what? Current value. Current value is what? Given of fuse, and you have to calculate what? Current by this power and voltage concept. If current rating is greater, then the air conditioner will run properly. If current rating is smaller value, if this one is smaller than the obtaining value, then the air conditioner will not run. Clear? Just solve out very easy. Calculate I equal to what? P by V. This is the rating current. I equal to P by V. Just solve out by using this one power kilowatt given, put the value of power, and this power is in kilowatt. You have to convert this into watt. Clear? Three point into 1000 upon 220 is equal to what? Greater than 10 or less than 10? Tell me. 3200 upon 20 upon 220. Will you cancel? When you solve out this one, then will you what? I equal to, this shall mean yes. Humaira Anjum, yes, tell me. 0.54. What? So 14.54 ampere.
14.54 ampere. Yes, sir. This 14.54 ampere, that is what greater than this current rating, greater than this current rating, greater than 10 ampere. It means when the switch is in on condition, then air conditioner will run. No, the fuel will blow off. Clear? It means no chance to operate the air conditioner at this power rating and at this voltage. Clear? क्योंकि करंट रेटिंग से कम अगर आती वैल्यू तब तो वो प्रॉपरली रन करता है. करंट रेटिंग से ग्रेटर वैल्यू आ रही है. इट मीन्स द फ्यूज दैट इज यूज्ड इन दिस current rating in this electrical plants are having power 3.2 kilowatt will not clear. एक बार आप लोगों का भी व्यू जान लें, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है जी? सोल्यूशन इज क्लियर? Yes, sir. सोल्यूशन Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. ओके, विजय पांडे, अगमदीप, सोल्यूशन क्लियर बेटा? अगमदीप, Yes, sir. ओके, वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? Three appliances are connected in parallel. Three electrical appliances are connected in parallel to the same source, which provide a voltage. Provide a voltage equal to what? 220 volt. 220 volts. Here, three electrical appliances that are parallel, connected in parallel, and which provides a voltage of 220 volt. A fuse connected to the source will blow. Just listen. A fuse connected to the source will blow if the current from the source exceeds 10 ampere. The current from source exceeds 10 ampere. Clear? Listen. The electrical appliances are connected in parallel, and the current rating here, current rating. That is equal to what? 10 ampere. 10 ampere. Here, and the three appliances are following powers are given here. The three appliances are rated at P1 60 watt, P2 500 watt, and P3 and equal to 1200 watt. 1200 watt. Three values are given here. Three values are given here. Listen again. First electric appliance power 60 watt. Second electric appliance power 500 watt. And third electric appliance power 1200 watt. The three appliances are connected in parallel. All the three appliances are connected in parallel. Connected in parallel. Here, then you have to calculate what? The current value. The current value in
parallel combinations, the current value is greater than this, then this current rating fuse will blow up. Otherwise, if the current value is less than this current rating, then the whole appliance panel will properly run. Just solve out and see what is the condition. Try to solve very easy question. Okay, the question is what? Will the fuse blow? Will the fuse blow? क्या फ्यूज ब्लो कर जाएगा? Anyone being able to solve this one? Vyuday Pandey or anyone student just being able to solve? Just tell me. Sania Brigade. Anyone? No one being able to solve this one. Very easy question. Just try to solve. Agamdeep. Anyone? You can speak if anyone having solution. Sir, 8 ampere. Laiba Ikram. And who is speaking here? 8 ampere. Who is speaking about 8 ampere? sir, हम Agamdeep. कौन बोल रहा है? जरा नाम बताओ अपना। सर अजीत सिंह। अजीत सिंह। ओके, वेरी गुड। चलो ठीक। I equal to 8 ampere. कैसे निकाला अभी? फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया बताओ? सर पैरेलल में पावर सर दी है, यस यस, पैरेलल में पावर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे। टोटल निकालें। टोटल कितना है? 400, 500, 1760। वेरी गुड। पावर लगा देंगे। I equal to P total of V, यही है? P total अपॉन V। P total क्या है? 1760 अपॉन 220। 8 to 60 and 60 17 years. Very good. 8 ampere आएगा। It is what? Less than 10 ampere. Less than 10 ampere. So all the appliances will run properly. It means there is no chance to flow. Clear? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? No, sir. सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम? एवरीथिंग क्लियर? काजल यादव। काजल यादव। Yes, sir. क्लियर है सॉल्यूशन बेटा? Yes, sir. हुमैरा अंजुम, रुद्रांश राय। Yes, sir.
ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तक आप लोग ने साइलेंस रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। इस तरह के कोई क्वेश्चन कराते हैं फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, पावर का या फिर रेटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मैं दो सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, बहुत सिंपल है। एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है। लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर या फ्यूज है। ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। ये क्या सर्किट है? एक सेकंड सर्किट है, यहाँ में एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, फ्यूज यहाँ लगा हुआ है। एक शॉर्ट सर्किटिंग का केस यहाँ भी है, शॉर्ट सर्किटिंग। Out of these two, you have to explain about which are the following circuit, which are the following circuit will still be dangerous। ध्यान सुनिए क्वेश्चन को। यहाँ पे दो सर्किट डायग्राम है, इसमें भी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, इन शॉर्ट सर्किट केस है। The what is used is connecting in live wire. Here live wire and neutral wire, and the fuse in neutral wire. Also having a short circuit. Here इसे इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक आयरन लग रहा है, वो भी कौन सा डिजाइन बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है। Electric iron, okay? Anyone just want to explain about this one? Which one is more dangerous? इसमें दोनों में कौन dangerous है? कोई बताना चाहेगा? Just raise your hand. तो मैं सबको अलाउ कर दे रहा हूँ। कौन ये बताना चाह रहा है? अगमदीप, yes, very good. बोलो बेटा, अगमदीप। सर जिसमें फ्यूज न्यूट्रल में लगा है। वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक, ओके, गुड। इसमें न्यूट्रल में लगा है लाइवा इकराम, यस, स्पीक। सर जिसमें न्यूट्रल पे लगा है। अच्छा, इसमें न्यूट्रल पे लगा है वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक, वेरी गुड। चलो और लोगों से पूछ लिया जाए एक साथ सबको अलाउ करके। Anyone remaining wants to explain except this? दो लोगों ने आंसर दिया है कि न्यूट्रल में फ्यूज लगा है वो ज्यादा डेंजरस है। और भाई कोई बताना चाहता है? रुद्रांश, which one is more dangerous?
रुद्रांश, हुमायरा अंजुम, सर जिसमें न्यूट्रल में लगा है। क्यों? Why? Explain. Why the neutral connecting fuse is more dangerous as comparison to live connecting fuse? जरा बताओ तो। Laiba Ikram, do you know about sir. the reason behind this? सर जो लाइट वाले में फ्यूज लगा है सर, उसमें अगर करंट ज्यादा आएगा तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सर जो न्यूट्रल वाले में लगा है वो ब्रेक नहीं होगा सर, तो वो इलेक्ट्रिक आयरन जल सकता है सर, इसलिए। मतलब लाइव वायर में जब फ्यूज करंट ज्यादा आएगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो जो करंट की कंडीशंस होती है ग्रेटर देन रेटिंग वैल्यू, देन फ्यूज विल ब्लो। ये तो कंडीशनल वैल्यू होती है, करंट की रेटिंग से वैल्यू अगर ग्रेटर हुई तो फ्यूज ब्लो करना ही करना है। ये कह लो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट व्हेनेवर फ्लोज थ्रू द वायर, देन द वायर connecting fuse will blow, the circuit will cut off. But tell me the exact reason why this one is more dangerous. ये dangerous क्यों है ज्यादा? क्या न्यूट्रल में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पोटेंशियल है और लाइव वायर में पोटेंशियल से डिफर है? अगमदीप, सर लाइव वायर में करंट फ्लो कर रहा, पर न्यूट्रल सर्किट को पूरा करने के लिए, तो न्यूट्रल में कोई करंट नहीं है। अच्छा न्यूट्रल में कोई करंट नहीं, चलो ठीक, हम मान गए तुम्हारी बात, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं है, न्यूट्रल में कोई करंट नहीं है। नो सर, अगर कोई लाइव वायर को फिर छुएगा तो उससे सर फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। न्यूट्रल को छुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये फिजानाज किस क्लास की है जी? फिजानाज तो हमको नहीं लगता कि नहीं एबीसी की है, वो रिक्वेस्ट क्यों भेज रही है? तो देखो एक चीज ये भी जानते हो, लाइव वाला है 220 वोल्ट, जानते हो नहीं? लाइव वाला है 220 वोल्ट, न्यूट्रल वाला है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। एक्सप्रेशन तो सही है, लेकिन प्रॉपर रीजन दोगे तो और अच्छा रहेगा। लाइव वायर जो 220 वोल्ट पे है, ठीक, तो ये भले ही कनेक्शन ऑफ हो जाए, 220 वोल्ट को हम क्या करेंगे, टच करेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट ना ज्यादा डायरेक्ट होगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, तो तुरंत क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तुरंत करंट फ्लो कर जाएगी। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये 0 वोल्ट ऑलरेडी है, हम लोग में है, तो कोई इसको टच करें या नहीं करें ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग। क्या क्लियर है जी? क्या क्वेश्चन क्लियर है? रुद्रांश, काजल, Yes, sir. चलो ठीक हो गया मेरे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। A vacuum cleaner draws a current of 2 ampere. I equal to 2 ampere. Vacuum cleaner draws a current of 2 ampere from the main supply. And what is the approximate value of the fuse to be fitted in this circuit? Fuse की approximate value क्या होगी? इस fuse rating क्या होगी? Fuse rating in a circuit. The first है what will the fuse rating? And second question, if a 30 ampere fuse rating fitted 30 ampere fuse rating is fitted in circuit, then what will happen? क्वेश्चन क्लियर है? एक वैक्यूम क्लीनर तो 2 एम्पियर करंट क्या करता है, ड्रॉस करता है, करंट ड्रॉस एट 2 एम्पियर, क्लियर, ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द मेन सप्लाई। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्यूज टू बी फिटेड इन सर्किट? फ्यूज रेटिंग बताना है क्या होगा, ठीक है?
फ्यूज रेटिंग के साथ साथ अगर 30 एम्पियर की फ्यूज रेटिंग हम यूज करते हैं सर्किट में, तब क्या होगा, दोनों कंडीशंस को एक्सप्लेन करना है। फिरोज अगमदीप, लाइबा, काजल, रुद्रांश, सुमेरा, अंजुम, एक्सप्लेन करो क्या होगा बेटा इसमें। इसमें फ्यूज रेटिंग कितने का हम लोग यूज करेंगे, बताओ जरा तो। बोलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? सर फर्स्ट में 2 एम्पियर और सेकंड में 13 एम्पियर। फर्स्ट में 2 एम्पियर, 2 तो वर्किंग More than 2 ampere. मोर देन 2 होगा बेटा, मोर देन 2 नॉट 2। तो मोर देन 2 में है 2.5 भी ले सकते हैं, बट ज्यादा सुटेबल क्या होगा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना करेंगे, रेटिंग उसकी 3 एम्पियर रेटिंग यूज करेंगे, तो वो हमेशा 3 से लेस करंट देगा। इस क्या करेगा, 2.5 2.6 7 8 9 तक वो करंट देगा, इससे वो क्या होगा, प्रॉपर्ली रन करेगा। ठीक है, क्लियर है। और सेकंड में क्या होगा, 13 एम्पियर करंट रेटिंग यूज कर लेता। Sir, due to high current, it will stop working. Yes, because the working concept of the cleaner is what? At like 2 एम्पियर, 2 से 0.5 में कुछ वर्किंग कर सकता है, 2.5 2.6 2.7 तक वर्किंग कर सकता है। जब अगर फुल रेटिंग हम लगा दिए 13 का, तो सोचो 5 एम्पियर करंट इजीली पास होगी, 10 एम्पियर करंट भी इजीली पास होगी। 10 एम्पियर 5 एम्पियर 8 एम्पियर करंट विल हार्म द पर्टिकुलर वैक्यूम क्लीनर। क्लियर, वो ये श्योर है कि डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। क्लियर है, किसी कोई कंफ्यूजन? एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? किसी कोई कंफ्यूजन है जी? रुद्रांश, मेरा अंजुम, सब क्लियर है बेटा? Yes, अहमद sir. बिलाल, ठीक। अदिति सिंह, सोमनाथ, ठीक, चलो ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन और समझ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे नंबर निकालना है, डिफरेंट नहीं है। क्या ट्राई करो तो कर लोगे। A domestic lighting circuit has a fuse of 5 ampere. A domestic lighting circuit has a fuse of 5 ampere. Fuse. This is the rating value of fuse. Fuse rating 5 ampere. Clear? If the main supply is at 230 volt, main supply is potential V equal to 30 volt. 230 volts. Clear? Then after this, calculate the maximum number of 36 watt. Calculate the maximum number of 36 watt tube light. Here is equal to calculate the power is what? 36 watt. You have to calculate the maximum number of 36 watt tube lights that can be safely used in this circuit. Just try to solve very simple question. कितने ट्यूब लाइट्स सेफली यूज किए जा सकते हैं इस सर्किट में, जो फ्यूज रेटिंग 5 एम्पियर का हो और वोल्टेज पावर सप्लाई क्या हो 230 वोल्ट से कनेक्टेड हो, एंड द पावर ऑफ ईच ट्यूब लाइट इज व्हाट 36 वाट।
सानिया परवेज, जुनैद, क्वेश्चन इज क्लियर? क्या निकालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइव आइक्रम, सर 31 बल्ब आंसर है। यस सर। 31 सर। किस फॉर्मूले से लगता है ये? क्या नाम है? सानिया परवेज, जरा बताओ तो द पावर टोटल फॉर्मूला बताओ। पावर P इक्वल टू V क्या है? P इज इक्वल टू वी आई, उसके बाद जो आंसर आएगा सर 13 पॉइंट कुछ आ रहा है सर, उसी से। P इक्वल टू V है या N P इक्वल टू V आई होगा? N निकालना है ना, V आई अपॉन P करेंगे, V आई अपॉन P, तो N इक्वल टू V आई अपॉन P। V क्या है 230, I क्या है 5 और P क्या है 36। तो ओवरऑल कितना है आंसर आप देखो तो? कैंसिल करने की वैल्यू क्या है? 31.94। 30.94, 31। तो 31.94 सही है जी? 31.94। 31.94। ओके, तो कितना यूज करेंगे हम लोग? 32 तो यूज करेंगे नहीं। 32 यूज करने पे हमेशा रिस्क रहेगा। इफ यू आर यूजिंग the approximate value of this 132, then there will be always a chance of damaging. So we will use the safer value. It means less than this. Less than this means what? 31. तो maximum क्या होगा? 31 होगा। maximum क्या होगा? 31 ट्यूबलाइट्स। 31 ट्यूबलाइट्स हम क्या करेंगे? सेफली यूज करेंगे। क्लियर है? किसी कोई डाउट आंसर में? नो सर। चलो ठीक, ओके, वेरी गुड। आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व एक क्वेश्चन है। क्या बताओ? सर 1 मिनट। क्वेश्चन है सर कि R1 and R2 are two resistors and R1 and R2 are equivalent resistance in series and parallel. Then R1 Yes. by R2 equal to? R1 by R2। Yes sir. R1 by R2 क्या प्रॉब्लम है? R1 R2 दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। Yes sir. तो R1 is the series combination and R2 is the parallel combination है। Yes sir. R1 क्या हो जाएगा? R1 is equal to 2R हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा? R by 2 हो जाएगा। R by 2 ठीक। R1 अपॉन R2 करेंगे, R1 अपॉन R2 तो वैल्यू क्या है? 4:1 आएगा। ठीक है, 4:1 क्या गिवन? सर पहले वो सीरीज में है, उसके बाद वो पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। सर R1 R2 पहले सीरीज में हो रहे हैं, उसके बाद पैरेलल में। अरे बेटा सीरीज में 2R आएगा नहीं आएगा? सीरीज में 2R आएगा, पैरेलल में R by 2 होगा। ठीक, दोनों का Yes, जब sir. रेशियो निकालेंगे, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे ना, यही आएगा। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? यस सर। चेक कर लेना। सीरीज में इक्वल रेजिस्टेंसेज व्हेनेवर, देन 2R, पैरेलल में R by 2 होगा। ठीक, रेशियो निकालेंगे, R और कैंसिल, ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसमें न्यूमरेटर में 4:1 आएगा। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। और भी क्वेश्चंस होंगे ना तो व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, अदरवाइज डिस्कस कर लेना क्लास में। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हेल्पिंग नेचर, इतना बढ़िया क्लास है।